Let us start reading question number 1 first, and then we will understand how to solve it in the regular course of things. So friends, question number 1 is a very simple one. हम लोग को दिया हुआ है, बोलता है विश्व शांति मंडल was established on 1st April 2009 and following is the financial information for the first year, that is 2009-10. तो समझना है कि ये नया ऑर्गेनाइजेशन चालू हुआ है. So receipts and payments account. अब ये क्या है सर? Receipts and payments account. So receipts and payments account is in the replacement of trial balance. आपको याद होगा तो receipts and payments account ये हम लोग 11th स्टैंडर्ड में सीखते हैं इन द चैप्टर कैश बुक. तो ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक है. क्या है ये? आपका सिंगल कॉलम कैश बुक. कल हम लोगों ने जब बात किया तो वी स्पोक अबाउट द आंसर पार्ट कि हम लोग क्या क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हाउ वी विल डू द थिंग्स. नाउ एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, you will be given receipts and payments account. So a receipts and payment account is a summary of cash book. Receipts represents cash received during the year. And payments represents cash paid during the year. तो receipts and payments account क्या है? सबसे पहला receipts and payments account is nothing but it is a summary of cash book. Receipts represents cash received during the year and payments represents cash paid during the year. So my dear friends, receipts हम लोग को ये मालूम है कि कैश रिसीव्ड दिखाता है. shows cash received during the year, but it is not necessarily the income of the year. Can anybody tell me the meaning of the sentence? मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं बोल रहा हूँ receipts shows cash received during the year, but it is not necessarily the income of the year. What does this mean? Any ideas? कोई सोच सकता है इसका मतलब क्या है? Income of the year. Yes, very good. So, in simple words, receipts includes cash received for the current year or past year or even next year also. वहां पर सारे पैसा आया तो रिकॉर्ड करेंगे. उधर कैश को महत्व दिया गया है. किसको महत्व दिया गया है? कैश को. ये नहीं देखा जाता है कि वो इसी साल का है कि पिछले साल का. जो पैसा आ गया वो सब रिकॉर्ड हो जाता है. समझे क्या दोस्तों? इज एवरीबडी क्लियर विथ दिस सेंटेंस? ऑल्सो receipts includes revenue receipts as well as capital receipts also.
समझ लो, वहां पर सबका मिक्सचर है, उधर रेवेन्यू रिसीव भी है और कैपिटल रिसीव भी है। नाउ व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, याद है हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने वाले इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, we have to consider only the revenue receipts related to the current year only। हम लोगों को इतना सारा गर्दी में से रेवेन्यू नेचर का जो रहेगा और जो करंट ईयर का रहेगा वही कंसीडर करना है। सिमिलरली the payment side represents cash paid for any year, that is current year, last year, or even next year। It also includes or it also represents capital expenditure as well as revenue expenditure। While preparing income and expenditure account, we have to consider, अब बोलो क्या कंसिडर करना है? ओनली द डैश। क्या जवाब दोगे? You have to consider which kind of expenditure? ठीक है, डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट करके कुछ सिखाया ही नहीं किसी। Yes, we have to consider only the revenue expenditure and that too related to the current year। तो समझ लो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है कि this is basically while preparing final accounts of a NPO, this receipts and payments account plays the role of, किसका रोल प्ले करता है? ट्रायल बैलेंस का रोल प्ले करता है, ट्रायल बैलेंस। सबको समझा मैंने क्या बोला? तो हम लोगों को क्वेश्चन में जो है we will be given receipts and payments account along with certain adjustments। तो हम लोगों को उसको ध्यान में रखते हुए we have to proceed further। तो हमारे पास विश्व शांति मंडल का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है। अब याद करके बताओ, सब्सक्रिप्शंस कल सीखा अपन ने, सब्सक्रिप्शंस ये कौन सा इनकम है? सब्सक्रिप्शंस ये कौन सा इनकम है? इट इज अ यस रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम होने की वजह से इसका इफेक्ट कहां पर लिखोगे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। कहाँ लिखने का? दिमाग में याद रखो, शांति से आराम से इफेक्ट्स याद रखना। पहला क्वेश्चन में हमेशा थोड़ा चीजें समझ में आने को टाइम लगता है। एंट्रेंस फीस के बारे में मैंने बोला, क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा। डोनेशंस के बारे में दिया रहेगा। एडजस्टमेंट नंबर 2 बोलता है ऑल एंट्रेंस फीस एंड डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। ये शब्द क्या बोला था? आर टू बी कैपिटलाइज्ड म्हणजे काय करायचं? कैपिटलाइज्ड म्हणजे काय करायचं? मैंने कल बताया, थियरी में लिखा के दिया है।
अगर कोई भी चीज कैपिटलाइज्ड बोलेंगे, यस इट इज टू बी एडेड टू, नॉट कैपिटल। कैपिटल सोल ट्रेडर का होता है, यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है कैपिटल फंड। क्या करना चाहिए? एड टू कैपिटल फंड। सिंपल है एकदम। परचेज ऑफ फर्नीचर, क्या खरीदा अपन ने? फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको मालूम है फर्नीचर कहाँ लिखना चाहिए? फर्नीचर कहाँ लिखना चाहिए? कहाँ लिखोगे फर्नीचर? Yes friends, furniture, very good Priya. Balance sheet, asset side, perfect. Basic है एकदम। वही प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, ऑफिस रेंट, सैलरीज, ये सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये सब हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ लिखोगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल, ऑफिस रेंट और ये सैलरीज, ये सब कहाँ पर आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड रिसिप्ट्स नहीं बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड। थियरी भले ही अलग हो लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वही होता है। मैंने अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट बनाया, बैंक में अगर जाके मैंने फिक्स डिपॉजिट लिया, अब याद रखना ये एक मंडल है, तो मंडल हमेशा पैसा जमा करने की कोशिश करता है। तो फिक्स डिपॉजिट अगर मैं बैंक में रखता हूं तो इट इज लाइक एन एसेट फॉर मी। कल चल के जरूरत पड़ने पे मैं यूज करेगा तो फिक्स डिपॉजिट आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। और बाय बैलेंस कैरी डाउन, सर ये क्या है? बेसिकली याद रखना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज आई टोल्ड कैश एंड बैंक अकाउंट। तो कैश एंड बैंक में हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, क्योंकि ये नया संस्था था इसीलिए ओपनिंग बैलेंस नहीं था। अब क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो कैश इन एंड कैश एट बैंक, साल के आखिर में हम लोग कहाँ लिखते? बैलेंस शीट एसेट साइड। बोलो सबको यहां तक समझा क्या? बहुत ही सिंपल है। इफेक्ट्स, फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1st October 2009 and it is to be depreciated at 10% per annum. So परचेज ऑफ फर्नीचर दिया है, डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। अब एडजस्टमेंट्स की बात करोगे तो कुछ भी नया एडजस्टमेंट नहीं है मेरे दोस्तों। बेसिक एडजस्टमेंट्स ही आप लोगों को चैप्टर में दिखने वाला है, इसलिए मैं अलग से कुछ उसके बारे में सिखाने को गया नहीं। डेप्रीसिएशन सबको मालूम है, लेस फ्रॉम फर्नीचर। और पी एंड एल अकाउंट डेबिट बोलने के बदले में हम लोग बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। क्या बोलेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। बोलो सबको समझा क्या? एंट्रेंस फीस डोनेशंस के बारे में पढ़ लिया। अभी तीसरा एडजस्टमेंट क्या बोलता है, ध्यान से समझो। देयर आर 1000 मेंबर्स ईच पेइंग 100 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। अगर इस संस्था में 1000 लोग हैं और हर लोग साल का 100 रुपया भरते हैं तो 1000 इंटू 100 करेंगे तो एक साल का सब्सक्रिप्शन हमारे पास जो जमा होना चाहिए 1000 इंटू 100 कितना जमा होना चाहिए? 1000 इंटू 100 कितना जमा होना चाहिए? 1 लाख रुपीज जमा होना चाहिए। लेकिन आप रिसिप्ट साइड में देखोगे तो सब्सक्रिप्शन सिर्फ 95,000 जमा हुआ है। सब्सक्रिप्शन कितना जमा हुआ है? 95,000। अगर लाख रुपया हमारा इनकम है और सिर्फ 95,000 मिला है तो बाकी 5,000 अभी मिलना बाकी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनकम रिसीवेबल। जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है वैसे हम इसको बोलेंगे इनकम रिसीवेबल। मेरे दोस्तों इस चैप्टर में अपन ने फाइनल अकाउंट्स में भले ही सीखा है लेकिन ज्यादातर यूज नहीं किया। तो एडजस्टमेंट्स इन
फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ गिन के कुछ एडजस्टमेंट है मेरे दोस्तों। So we have serial number, name of the adjustment, first effect, second effect। क्या क्या एडजस्टमेंट सीखा अपन ने? सबसे पहला अपन देखा डेप्रिसिएशन, अपने को मालूम है फर्स्ट इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम एसेट्स, और सेकेंड इफेक्ट लिखते वक्त आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। दूसरा भी आया इनकम रिसीवेबल, क्या करेंगे ऐड टू इनकम। अभी हमारे लिए रिसीवेबल है, तो मेरे दोस्तों मेरे को बताओ इसका सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में आएगा कि लाइबिलिटीज में आएगा? सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में आएगा कि लाइबिलिटीज में आएगा? पैसा हमको मिलना बाकी है, तो इसका नेचुरल सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। तीसरा भी आया नहीं लेकिन आ सकता है बहुत जल्द, वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगले साल का पैसा ये साल मिल गया, ये सब प्रीपेड अपन खर्चा जल्दी करते हैं, वैसा ही है। ये सब अपन ने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आया तो लेस फ्रॉम इनकम एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। लाइकवाइज ये आपको मालूम है ये चीज, outstanding expenses, add to expenses and balance sheet liability side. I hope everybody knows all these things. एक फॉर्मेलिटी में कोई अगर रह गया है जिसको नहीं याद आ रहा है तो मैं लिख रहा हूँ। And then we have prepaid expenses. Prepaid expenses आया तो less from expenses and balance sheet asset side। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये 5 और एक आधा आया तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, याद है आपको वर्ड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी? प्लीज राइट डाउन द इफेक्ट्स। यस लिखने से अच्छा इफेक्ट्स लिखो। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अगर आया, पहला इफेक्ट क्या करते हो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का? यस करेक्ट रितिक्षा, लेस फ्रॉम स्टेशनरी। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखते हो? balance sheet asset side, correct, less from stationery and balance sheet asset side। so ये एडजस्टमेंट आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स में ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 1, तो तीसरा एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल के बारे में है। मिलने वाला पैसा है 5000, तो ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड देन यू विल डूइंग बैलेंस शीट एसेट साइड। सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 600, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करोगे? इफेक्ट्स बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी का। आउटस्टैंडिंग सैलरी दो इफेक्ट क्या लिखोगे? यस ऐड टू सैलरी, आउटस्टैंडिंग है बेटा। प्रांजलि
बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, केतकी गायकवाड लेस फ्रॉम सैलरी, मतलब सवेरे सवेरे उठ के ऐसा मजाक करने का मेरे साथ ऐसा डिसाइड किया क्या? एक एसेट्स में लिख रहा है, एक लेस कर रहा है। ईशा में इसमें तो जर्नल एंट्री लिख दिया। क्या कर क्या रहे हो तुम लोग सब लोग? ऐड टू सैलरी टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, एडजस्टमेंट है बेटा, इसमें कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है डेबिट क्रेडिट वाला। सब आज सुबह सुबह फन के मूड में लग रहे हैं मेरे को, ऐसे टाइम पास करने का। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो हम लोग लिखते वक्त इन द बुक्स ऑफ, क्या है वो, विश्व शांति मंडल। देख लो, पहले ध्यान से समझ लो। फर्स्ट पेज में बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये पहला बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसलिए एक्चुअली आधा आधा पेज में भी काम हो जाएगा, बट अदरवाइज आप लोगों को जो है पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। और आधे पेज के बाद बैलेंस शीट, एज ऑन, क्या डेट है, 31 मार्च 2010। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के उधर आएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। सेम इसी प्रकार से हम लोग बैलेंस शीट भी बना लेंगे। इसमें आएगा लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। एवरीबॉडी कंफर्टेबल आई होप। सिर्फ लाइबिलिटीज साइड में आपको एक काम करना है, पहले लाइन में लिखना है कैपिटल फंड, बाकी कुछ प्रोफॉर्मा नहीं है। बाकी अदर थिंग्स विल रिमेन, इट विल कम एंड वी विल राइट इट डाउन। आधा पेज के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हो सके तो बाद में चल के तो अपने को एक एक पेज करना ही पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन था, इसके लिए छोटा क्वेश्चन है, आधा पेज बैलेंस शीट। स्टार्ट करूं दोस्तों? मैं आए, are you all ready? If anybody wants to ask any doubt regarding the question, you can ask now. सर पर्टिकुलर का लिया है सर? पर्टिकुलर्स मीन्स डिटेल्स। तो डिटेल्स हम लोग लिख रहे हैं और कुछ नहीं। प्राजक्ता समजलं? आपण माहिती लिहितो की ते कुठला अकाउंट डेबिट झाला, का डेबिट झाला, सो वी राइट दॅट. आणि इट इज नॉट पर्टिक्युलर. पर्टिक्युलर म्हणजे एका गोष्टीसाठी असतो. पर्टिक्युलर्स प्लुरल, बहुवचन, अनेक संख्या. प्राजक्ता, आर यू देयर? डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं लिहायचं का? सी, there is a some people do write income and expenditure also,
but you have to be careful. It will be expenditure rupees, income rupees. गडबड करू नका. नाव अकाउंट आहे इन्कम अँड एक्सपेंडिचर. आता इथे कसं आहे रेसिप्ट्स अँड पेमेंट्स अकाउंट आहे, तर रेसिप्ट्स अँड पेमेंट्स दिस इज इझियर, बट इन इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिमेंबर the debit side is the expenditure and credit side is the income, but in general we write particulars only, we don't write income expenditure. There are teachers who teach, there are teachers who write, but what books I prefer, they don't write it. त्याच्याने तुमच्या मार्क्स वरती काही परिणाम होत नाही आणि इट इज अ जनरल हॅबिट. ओके, परफेक्ट. चलो लेट अस स्टार्ट. गुड डाउट. पहला आइटम है सब्सक्रिप्शंस. सब्सक्रिप्शंस की तरह आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्रेडिट साइड उन्होंने दिया है 95,000. एडजस्टमेंट है इसके लिए इनर कॉलम. ठीक है, कौन सा एडजस्टमेंट था आपको याद रहेगा तो उसमें करना था सब्सक्रिप्शंस रिसीवेबल. सब्सक्रिप्शंस रिसीवेबल होता है ऐड टू सब्सक्रिप्शंस. ऐड सब्सक्रिप्शंस रिसीवेबल 1 लाख रुपया होना चाहिए था, हुआ है सिर्फ 95,000, यानी 5,000 मिलना बाकी है. तो 5,000 रुपया ऐड करोगे तो इस साल का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा ₹1 लाख. बोलो क्या लिखने का, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट फिर भी कैसा लिखने का सबको समझा क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में, एकदम फर्स्ट लाइन में मत लिखना क्योंकि दिस इज लाइक योर डेटर्स रिसीवेबल. तो इसको थोड़ा सा मैनेज करके समवेयर अराउंड इन द मिडिल ऑफ द पेज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल outer column 5,000. Next, entrance fees and donations are to be capitalized. So capital fund में add entrance fees. याद रखो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला साल है, इसलिए इसमें कैपिटल फंड कुछ भी नहीं है, तो डैश लिखेंगे. तो add entrance fees 10,000. दो चीज ऐड करना है, दोनों को एक साथ लिखो या अलग अलग लिखो, तुम्हारी मर्जी. ठीक है, मेरे को अभी एक साथ करने को जमता है, तो 10,000 और 75,000 दोनों भी मैं ऐड करके आई विल राइट इट इन द इनर कॉलम इटसेल्फ, ₹85,000. Why in the inner column? Can anybody tell me why inner column? Why did I not write in the outer column? क्यों लिखा दोस्तों इनर कॉलम में? अजून अदर आयटम्स पण असणार. कुठले आयटम्स शिकवलंय मी? एक महत्वाचा आयटम इथे असू शकतो. कुनार यू यूज द रॉन्ग वर्ड. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट लॉस नहीं होता, शब्द दूसरे हैं उसके लिए. यस, सरप्लस एंड डेफिसिट. तो सरप्लस हुआ तो ऐड होगा, डेफिसिट हुआ तो लेस होगा, इसीलिए कभी भी कैपिटल फंड इनर कॉलम में ही लिखने का. फर्नीचर 20,000. अच्छा, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट डबल इफेक्ट, वो हिसाब से हम लोग चल रहे. बोलो फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करने बोला है. फॉर डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10%. बोलो 20,000 का 10% कितना होगा? 20,000 का 10% कितना होगा? यस, वेरी गुड. जो मैं चाहता था वही जवाब सबने लिखा आपने, बट आपका जवाब गलत है क्योंकि उन्होंने बोला फर्नीचर वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर और हम लोग 31 मार्च को फाइनल अकाउंट्स बना रहे. 2,000 नहीं, सिर्फ 1,000 आएगा, कारण फर्नीचर जो है इट इज यूज्ड ओनली फॉर 6 months. गलती का जगह.
समझ रहे हो ना गड़बड़ कैसा हो सकता है करके। depreciation, second effect to depreciation on furniture, rupees 1000। समझ रहा है क्या दोस्तों? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपल है। फिर आया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रुपीज 5000। उसके बाद दिया है न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स 2500। अभी थोड़ा लाइन ऊपर नीचे संभालना पड़ेगा। फिर ऑफिस रेंट है 7300, ऑफिस रेंट 7300। यहाँ पर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, लेकिन सैलरीज में एडजस्टमेंट है। तो सैलरीज है 8400 और आउटस्टैंडिंग है 600। तो सैलरीज इनर कॉलम 8400 एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 600। आउटर कॉलम में आएगा 9000। I hope things are very clear with everyone, friends. Nothing great as such, कुछ भी ऐसा डिफिकल्टी लेवल नहीं। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा सब लोगों को। बट अभी जो क्वेश्चन चल रहा है, दिस इज ऑनेस्टली वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 600, फिक्स डिपॉजिट्स दिया 85,000, तो एसेट साइड में आएगा फिक्स डिपॉजिट्स। आउटर कॉलम 85,000, कैश इन हैंड 1800, कैश एट बैंक 50,000। कैश इन हैंड, अब इनर कॉलम में जैसा उन्होंने लिखा वैसा लिख के लिखोगे तो भी हरकत नहीं, या अलग अलग लिखोगे दो आइटम्स। कैश एट बैंक 50,000 देखोगे तो पहला एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन का हो गया, एंट्रेंस फीस डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। यानी इस क्वेश्चन का सारा काम हो चुका है। तो लेट अस सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वंस अगेन। मैंने बोला पहला क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा उसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं है। क्रेडिट में 1 लाख है, डेबिट में देखोगे तो 1000 5000। क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा है, दिख रहा है क्या सबको दोस्तों? मुझे टोटल करके डिफरेंस कैलकुलेट करके बताओ, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सरप्लस। हेल्प मी कैलकुलेट द सेम। 9 और 7 16, 2 18, 18 और 6 24,800। 24,800 अगर मैं माइनस करता हूँ 75,200 आ रहा है क्या दोस्तों? कोई कंफर्म करो। यस, 75,200। तुम लोग उसको स्टार मार्क करोगे। कभी भी याद रखना, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया तो स्टार मार्क लिख के अकाउंट्स में। तो फ्रेंड्स, वो सरप्लस जो आया उसको आप बोलोगे ऐड टू कैपिटल फंड 75,200। 85,000 plus 75,200 will be 1,60,200. लास्ट पार्ट बैलेंस शीट टोटल करना है अपने को। लाइबिलिटीज का तो टोटल दिख रहा है, ओरल है 1,60,800। कोई मेरे को एसेट्स का टोटल कंफर्म करके बताओ। 800 दिख रहा है, 9 5 14 और 6 20।
पाँच और दो सात, सात और नौ 16. I think yes, it is 1,60,800 on both the sides of the balance sheet. Very simple question that you have in not-for-profit organization.